Hello dear students, today we are going to study velocity and energy at the highest point. In the previous term we are discussing about the projectile, now we will study this topic. So at the highest point, the horizontal and vertical component we have to find of velocity. Horizontal component vx, that is u cos theta, vertical component vy. At the peak position the velocity is 0. Okay, we have to find the kinetic energy and potential energy at point P. So kinetic energy, you know the formula, K equal half m vx square. It means K equal half m u cos theta to the whole square. It means K equal half m u square cos square theta. Let K naught equal half and u square. Then from this equation you can write K equal K naught cos square theta. This is the equation number 2. Okay, potential energy. U equal mgh. You know the formula of maximum height. Put it here. mg equal u square sin square theta upon 2g. This cancel out. Now u equal half mu square sin square theta. You know that this term is K naught, then K naught sin square theta. This is the equation number 3. Total energy we have to find. Total energy E equal kinetic energy plus potential energy. Then equal P plus Q. Kinetic energy is K naught cos square theta plus K naught sin square theta. Then E equal K naught is common, cos square theta plus sin square theta. You know that its value is 1. Then E equal K naught. तो आप देखेंगे तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन स्पीड, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. वह चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है. व्हाइल द वेलोसिटी एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस. Okay,
Note it down. Now if I told you find the maximum height, अगर आपको maximum height निकालना हो तो कितना होगा? Maximum height निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, h equal u square sin square theta upon 2g. We have to take the value of theta is 90 degree for maximum height theta equal 90 degree. Then h max equal u square sin square 90 degree upon 2g, and h max equal the value of sin 90 is 1 u square upon 2g. Okay. And for maximum range, what the value of theta we will take? 45 degrees. Okay, you know the formula for range? U square sin theta upon g. This is the formula of range. You can break the sin theta into u sin theta, u cos theta. We have to find the maximum range. We will use in future this formula. For maximum range, theta is 45. Max equal u square sin 2 into 45 upon g. 45 into 90, then R max equal u square sin 90 degree upon g, and the value of sin 90 is 1, then R max equal u square upon g. Okay, if I told you write the range formula into its horizontal and vertical component, अगर horizontal vertical component में लिखना हो तो आप इसे लिख सकते हैं, obviously आप लिख सकते हैं. This term is ux vertical component, this term horizontal component, sorry, uy ux. So R is also written as 2 ux uy upon g. अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के रेंज फॉर्मूले को लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. अगर हाइट के फॉर्मूले को लिखना हो तो हाइट का फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है, h इक्वल uy स्क्वायर अपॉन 2g. तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं. जब सब लिखा है तो फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल क्यों नहीं लिखेगा? फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल में देखिए कितना आ जाएगा. टी का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप ये लिख सकते हैं 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा upon g, and this is the uy, then t equal to vertical component upon g.
कंपोनेंट में लिख लिया, नोट इट डाउन। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एट सम हाइट। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि आप ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे खड़े थे और ऐसे सर्टेन एंगल बनाते हुए आपने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो दिया था, तो जिस पाथ पे चला था वो पाथ पैराबोलिक था। इसके लिए आपने डिफरेंट फार्मूला डिराइव किया था। नाउ वी हैव टू स्टैंड एट योर रूफ। अगर आप अपने छत पे खड़े हो जाओ और छत पर खड़े होकर के किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करो, तो कितना आपका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा, फ्लाइट टाइम कितना होगा, ये सब वेरिएशंस हमें पढ़ना है। हमने क्या किया है, हमने डेटा सेट किया है कि हम अर्थ के सरफेस से h हाइट पे हैं, देयर इज पॉइंट O पे है, एंड फ्रॉम u वेलोसिटी वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट, देयर इज अ पॉइंट P, एट पॉइंट P वी राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द velocity vx by the angle it makes, that is alpha. This position is known as range. From here to here it is known as range. तो हम लोग देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन कितना आ रहा है, उसमें क्या क्या है, और वर्टिकल मोशन। horizontal motion in acceleration that is 0, initial velocity इनिशियल वेलोसिटी देखिए, यहाँ पे आपने इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है, u से थ्रो किया है, तो क्या हो जाएगा, ux इक्वल u फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। वर्टिकल मोशन में एक्सीलरेशन देखिए, दैट इज अ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, and that is 0, ठीक है। Okay, after that we have to find the horizontal motion with the second equation of motion. Horizontal motion from second equation of motion. Yet take a horizontal component, it means x equal ux t plus half at square, and that is ax. Ux equal u, and x equal ut plus half, acceleration is 0, then x equal ut, and t equal x upon u. It is the equation number 1. ये आपका equation number 1 है। Vertical motion again use the second equation of motion, that y equal uyt plus half ayt square, 0 that is the gravitational acceleration, and this is 0, so 0 into t plus half gt square. Now you will get the formula y equal half gt square. Put the value of t from equation number 1. Then y equal half g x square upon u square.
When you compare these equation number 2 and 3 you compare करोगे then you will know that the path of projectile is parabolic. It is an equation of parabola. Okay. Note it now. We have to find the flight of time. For this, you have to use second equation of motion. Suppose vertical distance traveled in time that is h. Then h equal ut plus half at square vertical that is, that's why dy and x equal this component vector is 0 plus half gt square h equal half gt square and gt square equal to h and t equal under root 2h upon g. After time of life, we have to find the maximum नहीं मैक्सिमम नहीं हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लेते हैं. देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आया, यहाँ से वहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए फिर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे. दैट इज x इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर x यानी x इक्वल दिस कंपोनेंट इज ut प्लस हाफ रेंज. We have no range is denoted by r. That's why we will use r. And it is 0 into t square. Then r equal ut. Note it down. If I told you find the velocity of projectile at any instant, then you will find velocity of projectile at an instant. बहुत इजीली निकाल सकते हैं, इससे पहले भी आप लोगों ने निकाल रखा है. ठीक है. This component is 0 plus gt. Okay. It is 0. अब आपको रिजल्ट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको आज से नहीं बहुत पहले से पता है, निकाल डालिए. अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t. That is the velocity of projectile at an instant. Note it down. We have to study new topic, motion of projectile projected from a point some height above the earth at some angle with horizontal. अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आप छत पे अपने खड़े होकर और ऐसे फायर कर रहे थे. अब आपको फायर ऐसे करना है, मेकिंग सम एंगल. यहाँ पे दो केसेस आएगा. एक आप अपवर्ड डायरेक्शन में सम एंगल बना के ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे,
ऐसे और दूसरा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में से प्रोजेक्टेड करोगे। तो हम दो कंडीशंस देख लेते हैं। देखिए अभी तक आपने फॉलो कैसे प्रोजेक्ट किया था, ऐसे किया था। अब आप कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? यू हैव टू मेक सम एंगल, कुछ एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करना है। ऐसे यू हैव टू प्रोजेक्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे आपको टू कंपोनेंट्स मिलेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। आप देख सकते हो that is the range R, the surface of our face, ठीक है। एक आपने ऐसे एंगल बनाते हुए फेंका ना, अब आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। आप सर्किल एंगल बनाते हो ऐसे प्रोजेक्ट करो, u cos थीटा और इधर कंपोनेंट u sin थीटा। इस कंडीशन में ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा और इस कंडीशन में वाला कंपोनेंट पॉजिटिव, ठीक है। इट इज द रेंज R। ओके, दोनों कंडीशन में हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लेते हैं। तो हियर एक्सीलरेशन ax 0 और आपका अगर हम कंपोनेंट की बात करें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देन ux इक्वल u cos थीटा। रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हम लोग लिखेंगे, ये हमारा कंपोनेंट ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कंपोनेंट कौन सा लेंगे, x वाला लेंगे, x। इट इज u cos थीटा into t plus r into 0 into t, then range r equal to u cos थीटा t। रेंज देखिए कितना आया, u cos थीटा into t आया। इस वाले में भी आप रेंज ऐसे निकाल सकते हो, इस वाले में भी रेंज यही आएगा। ठीक है। ओके, वी हैव टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स। नूतन पब्लिकेशन का पेज नंबर 198 पे न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए क्या लिखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स p and q आर 5 and 7 respectively. Draw level diagram showing that magnitude direction of p plus q vector and p minus q vector। देखिए टू वेक्टर्स दिया हुआ है जिसका आपको वैल्यूज दिया है 5 and 7। यू हैव टू ड्रॉ द लेवल डायग्राम। वेरी इजी। vector plus q vector and p vector minus q vector। आपको वैल्यूज पता है और आपको निकालना क्या है, p plus q। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q। तो रिजल्टेंट निकालने वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, r स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा।
Here the value of theta is 90 degrees, so you have to place r square equal p square plus q square plus 2p q cos 90. The value of cos 90 is 0. That's why r square equal p square plus q square. Now you know the value of r square and p square and q square. square plus 7 square. It is 5 5 25 and 7 7 49. That is 4 2 6 1 7 and 4 74 and r equal root 74. जब root 74 को सॉल्व करोगे तो 8.6 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी. Now we have to find the value of vector p minus vector q. mod निकाल दीजिए. अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, that is 74 and the answer is 8.6. ठीक है, that is the numerical number 1. Now see the numerical number 2. What the question is saying: a car is going towards north with velocity 20 meter per second. After some time it start to go towards south with velocity 20 meter per second. Determine change in the velocity of the car. कार की वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ है ये निकालना है. 2 वेलोसिटीज दिया हुआ है. वेलोसिटीज दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ. इसका इधर है जी कैप, इधर का आई कैप माइनस जी कैप एंड माइनस आई कैप एंड माइनस जी कैप 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है. फिर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम स्टार्ट गो साउथ विथ 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, 20 मीटर पर सेकेंड फिर इस डायरेक्शन में. वेरी इजी. v1 वेक्टर इक्वल 20 j कैप, v2 वेक्टर इक्वल 20 j कैप, बट डायरेक्शन इज अपोजिट. डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट. हम आपको कहें डेल्टा v निकालने के लिए तो इजीली आप डेल्टा v निकाल सकते हैं. v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, देन डेल्टा v इक्वल द वैल्यू ऑफ v2 इज माइनस 20 j कैप माइनस ये 20 j कैप, देन डेल्टा v इक्वल माइनस 20 j कैप. आंसर आपका आएगा 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ एट एनी इंस्टेंट. आफ्टर ट्रेवलिंग 1/4 ऑफ द पाथ इट्स वेलोसिटी इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट. इंडिकेट द चेंज इन द वेलोसिटी इन अ वेक्टर डायग्राम.
सर्कुलर पाथ का ऑब्जेक्ट मूव करता है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वेक्टर डायग्राम आल्सो। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यही है, v1 वेक्टर v2 वेक्टर, हमें दोनों वेक्टर की वैल्यू पता है, दैट इज गिवन 5 एंड 5 5j है, 5j है। अब आप एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व कर सकते हो। डेल्टा v निकालेंगे, डेल्टा v निकालने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे। mod delta v vector, that is under root 5 का square plus minus 5 का square, that is 25 plus 25. The value of vector is under root 50. ठीक है, इतना आ जाएगा। और आपको निकालना है एंगल भी, तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, पहले इसकी वैल्यू निकालिए, सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेटली 7.1 आएगा। हाँ, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? थीटा इक्वल tan इनवर्स परपेंडिकुलर ऑफ बेस tan 5/5। देखिए कुछ होगा तो नहीं है। अरे भाई बोल दे देगा माइनस tan इनवर्स 1। हाँ, तो यह कितने की वैल्यू होती है? 45 की वैल्यू होती है, यू नो वेरी वेल। tan थीटा इक्वल 45। नाउ वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा? इस टाइप से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Two forces 6 Newton and 8 Newton act at a point at an angle of 90 degree with each other. Determine the magnitude and direction of the resultant force by drawing a vector diagram. ठीक है, दो फोर्स है, 8 न्यूटन का और 6 न्यूटन का। न्यूटन एंड 6 न्यूटन का। ये डिवीजन डायग्राम बन गया, F1 F2 that angle is theta or whatever you want to say। हाँ सर, अब क्या कह रहा है? Determine the magnitude and direction of the resultant force by drawing the vector diagram। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे और आफ्टर दैट tan अल्फा निकालेंगे। इट इज वेरी इजी फॉर यू। F2 cos theta. Here the value of theta is, here the value of theta is 90 degree. Then under root 8 square plus 6 square
यह आपका है। अब एंगल निकालना है, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको आज से नहीं बहुत पहले से पता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल लीजिए, या 4 तो 8/6 2 4 8 2 3 6 tan अल्फा इक्वल 4/3 then अल्फा इक्वल tan यूनिवर्स 4/3 और यह वैल्यू होता है 53 डिग्री का, तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 53 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड अनदर ऑफ 600 टुवर्ड्स नॉर्थ, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट फोर्स फ्रॉम सेकेंड फोर्स बाय ड्राइंग द वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम बना करके इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये वाला कर लीजिएगा, एकदम सेम पहले की तरीके से है, यहाँ इसमें भी वही कंपोनेंट में लिखेंगे। ठीक है, F1 F2 की वैल्यू लिखिएगा, उसके बाद एंगल निकालिएगा, tan अल्फा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप का है। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 100 km/h 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, फाइंड द नॉर्थ एंड ईस्ट कंपोनेंट बाय ड्राइंग द वेक्टर डायग्राम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखिए कहाँ से आ रहा है, वहाँ से हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, कह रहा है when a force of 10 Newton act on a body, the body is displaced 2 meter in the direction of force, calculate the work done। बहुत इजी है, आपने वर्क डन का फार्मूला पढ़ रखा है, W = Fs, आपने पढ़ रखा है W = Fs, तो उसी फार्मूले में रख करके तुरंत कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, W = Fs cos थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, 10 न्यूटन एंड 2 मीटर। F = 10 न्यूटन एंड इट इज 2 मीटर, तो W इक्वल हो गया 10 × 2 cos थीटा। Angle is not given, yeah, anything more is given. Force of 10 Newton on a body is placed in that direction। अच्छा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, it means the value of theta is 0 and the value of cos theta is 1 × 10⁻20 joule। Answer, very easy question। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी 5 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 50 मीटर, द वर्क डन इज 125 जूल, फाइंड द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है, इसमें आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर एंड फोर्स इज 50 न्यूटन। Force is 50 Newton and it is 5 meter। W is 125 joule, then 125 equal 50 × 5 cos theta। Now solve it। 5 2 × 10 and 5 5 25। Now 25 and 25, 25 2 × 20, cos theta equal 1/2 and you know very well यह कितने की वैल्यू होती है, 1/2।
थीटा इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10, ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स 5 न्यूटन, इट इज डिस्प्लेस्ड 2 मीटर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। W इक्वल एफ एस कॉस थीटा, यू नो वेरी वेल, अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल उनके मिड में बनेगा 90 डिग्री, और जब एंगल 90 डिग्री बनना है तो cos 90 की वैल्यू आपको पता है 0, पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, the magnitude of two vector A and B are 5 and 4 unit respectively and the angle between them is 30 degree। उनके मिड में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B। ठीक है, बहुत इजी है, 5 4 30। वेक्टर A डॉट वेक्टर B, AB cos थीटा 5 into 4 into cos 30, value of cos 30 किलो रहेगा 5 into 4 into 3/2। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। आंसर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लगाइएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। थैंक यू।